All right, Ji, Bismillah Rahman Rahim. Welcome to another session of Evolve Talks. And I'll come straight to the topic today. I feel very lucky and very excited as well that today, in our show, as announced in detail, we will have today none other than Kamran Rizvi. Uh, Kamran Bhai does not need any introduction for those people who have been familiar with Pakistan learning and development industry, training and development industry se waqif honge. They will be well familiar with the personality of Kamran Bhai. And without any further delay, when I introduce him, I'll introduce him with this one fact that when we had this session coming in, जब हमने announce किया था कि Kamran Rizvi would be joining Evolve and talking about a topic which is very, very important, facing tough realities, not only me, but our whole office, but whole team, but everybody was excited to have him on the show and let's talking about how to face tough realities. So very quickly, I'll jump across to him and welcome Kamran Bhai on the show as well. Kamran Bhai, first of all, Assalamu alaikum. Thank you very much for your time today. Wa alaikum assalam, and thanks for honoring me on your program. And I hope that we are able to have a conversation that is stimulating and that your audience who will be posting their questions and comments, let them flow as many as they wish. और आप दानियाल उनके नाम लेके मुझे बता भी रहे होंगे और साथ ही साथ आप भी मुझे जितना चाहें सताएं तंग करें और मैं भी ढीठ हूँ. I'll enjoy the whole process. Let's keep it interactive. I have a few thoughts which I'll share, but I think sparking बड़ी अच्छी चीज होती है when you get into a conversation. And that is the best part about it. Kamran bhai, first of all, Ramzan almost khatam hone ko hai, Eid ki आमद hai, lockdown. How has this Ramzan been different for you? Well, I must say that when you are in a lockdown, Daniel, you realize that going out is no longer a safe proposition. And when you do, you need to exercise all the precautions. And business as usual, to completely out hai. So as a result, schools, colleges, universities, and many businesses, other than, of course, logistics and जिसमें हमारे आजकल के जो heroes हैं, nurses, paramedics, doctors, and of course the security personnel, the armed forces, those who are doing things on ground. I salute them because they're taking their lives in danger. लेकिन lockdown में ये होता है जिस तरह के हालात हैं कि we know that we cannot control events. No country on planet Earth can control the events that are happening, and no one can truly predict what the future holds. There are talks of a second wave and God knows what. So गुजारिश सिर्फ इतनी है कि when you can't step out, then the other avenue we have is to step in and go within and use this opportunity to come out renewed, stronger, and a more viable member of society who makes a contribution. So Ramzan ka mahina, as you rightly put it, is perhaps such a timely event कि ना सिर्फ रमजान सुकून से गुजरा, इस दफा गर्मी की शिद्दत भी कम रही, लेकिन साथ ही साथ मैंने ये देखा कि इबादत और अल्लाह के करीब आने का मौका लोगों को मिला, क्योंकि एक ऐसा जोर का थप्पड़ है ये कोविड-19, होश में ले आया, दुनिया को झंझोड़ दिया. And I find that when we are put in a crisis of a kind of a magnitude of the one that we experienced, then it's only God's way of bringing us close to Him. And I feel that Ramzan and this truly is a moment of renewal, reflection, and discovering those hidden potentials that we had. And of course, not everyone is taking it this way, no doubt. Not everyone is. And fear has gripped a lot of people in terms of the future. कि यार दाल पानी कैसे चलेगा, काम कहाँ से आएगा. And मैं और आप तो फिर भी बहुत privileged हैं in many ways, because we have some savings and we have some infrastructure that supports us in these hard times. But the majority of our fellow citizens are struggling, and I honestly feel that pain as well. So it's a time to reflect on how did we end up creating a world of the kind that we have in the last 70 years within Pakistan. And it's high time that we awaken to our responsibility as leaders
and as thinkers to create a society where जो भी आफत हो उसको हम मिलके इस अंदाज से फेस करें कि कोई पीछे ना रह जाए. अब ये ख्वाब है एंड उसके लिए बीज बोने हैं. अच्छा, मेरा अभी आपसे एक डिस्कशन भी हो रही थी एंड एक क्वेश्चन भी है, बड़ी इंटरेस्टिंग है. आज मुझे आप अलाउ करेंगे कि आज मैं आपसे अपने फेवरेट क्वेश्चंस भी पूछूंगा, बिजनेस की बातें भी करेंगे. I'll always seek you as a mentor. मुझे एक बात बताएं, कोविड-19 ने, लॉकडाउन ने बड़ी जगह पे क्वेश्चंस हुआ है. मुझे काफी लोगों के करीब कर दिया, मौका मिला बात करने का बहुत सारे ऐसे लोगों से. ऑनलाइन सेशन स्टार्ट हो गए. लर्निंग एंड डेवलपमेंट इंडस्ट्री को शायद कमर्शियल एस्पेक्ट से तो फर्क पड़ा हो, लेकिन आई डू बिलीव दैट लर्निंग एंड डेवलपमेंट ट्रेनिंग बढ़ गई. लोगों ने सीखना शुरू कर दिया, बातें करनी शुरू कर दी, तो बड़ी ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हुई. यस यस. एंड मुझे याद है कि जब मार्च में लॉकडाउन का सिलसिला शुरू हो रहा था तो एक किस्म का पैनिक भी था. एंड वर्क फ्रॉम होम का मेरे ख्याल से साउंड बाइट्स में ज्यादा सुनने लगा. एंड हम सब ने सुना होगा. एंड एक तरह की नई जिंदगी में जब आप दाखिल होते हैं तो कंफ्यूजन बहुत होता है और रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज मिक्स अप हो जाती हैं और फिर डिसिप्लिन नहीं होता. एंड फैमिली के अंदर एक तो प्यार मोहब्बत की बातें होती हैं, उसके बाद जो चिल्ला चिल्ली शुरू हो जाती है कि ये हो क्या रहा है. तो आई हैव अ फीलिंग दैट it has literally thrown everything upside down and it is now getting us to unravel and make something of it. मेरे ख्याल से हमारी प्रैक्टिसेस बिल्कुल बदल जाएंगी पोस्ट कोविड. राइट, एब्सोल्युटली. अच्छा, मैं बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात शेयर करूंगा. आई रिमेंबर 2-3 years back you came in my wedding as well. मैं रिलेट इस तरह से करूंगा that I was blessed with a second son, और मुझे ऐसे लगा कि he came with a plan that he wanted parents, his father, to spend time with him, and that's what I will look at. It was just the start of the lockdown. तो बहुत सारे बच्चों का पेरेंट्स का रिलेशनशिप आपस में बड़ा स्ट्रांग हुआ. Yes. क्या नाम है बेटे का आपके? Second one? His name is Salar. Salar. And the first one? Is Mikhail ji. Mikhail and Salar. And Mikhail की अब क्या एज है? Mikhail is 2 and I think 2 years and 4-5 months right now. So it's been 3. Oh, what a cute age. मेरा पोता जो है वो 3 साल का है. उसका नाम जैन है और एक और पोता है जो 11 साल का है. And I tell you, it is amazing. You know, as a grandparent, अल्लाह तुम्हें grandparent बनाए जल्द और फिर तुम उसके मजे जो और हैं, और भी मजे हैं. तो you are right. I mean, it has been in many ways an experience which has exposed us to things we would not have done before, or to that level जो अब हो रहा है. बिल्कुल ऐसे ही है. Exactly. अच्छा कामरान भाई, facing tough realities. Thank you very much for this topic as well. Coming towards it, लॉकडाउन भी एक वो टफ रियलिटी है. आपने तो लाइफ में बहुत सारी टफ सिचुएशंस देखी होंगी, लोगों को उससे निकाला भी है, गाइड भी किया है. Is it one of those times जब हम कई दफा कहते हैं it's one of those times, होता है, हो जाएगा, निकल जाएगा. So do you really think it's just one of those times? It will be resolved. This will be settled. What do you think? देखिए, टफ रियलिटीज की पहले बात कर लें कि मैंने ये सजेस्ट क्यों किया एज अ टॉपिक. एंड इसमें मैंने 97 में हार्वर्ड में एक लीडरशिप कोर्स अटेंड किया था, जिसके अंदर वो 6 दिन का था. 22 ममालिक से लोग आए थे, from the voluntary sector, the government, as well as the corporate. So it was a very क्या कहेंगे, a diverse group of business leaders and government officials, etc., talking about a subject of leadership in the 21st century. और उसमें प्रोफेसर हाइफिट्स एक थे जिन्होंने कमाल का सेशन चलाया था 2 दिन. And I recall that the central idea behind what he was saying was, you know, leadership begins by facing tough realities. और फिर उन्होंने सवाल ये पूछा कि what are the tough realities you face today? और मैं 97 की बात कर रहा हूँ, ठीक है. तो tough realities से मुराद उनकी ये थी कि भाई what is your biggest challenge in life? और आप यकीन जाने जब ये सवाल पूछा था तो most of us were pointing to external challenges. Most of us. I mean, out of the 62 people who had assembled, I believe 90% were focused on the external. And external से मुराद ये थी market, competition,
यू नो आई एम फेसिंग अ फैमिली सिचुएशन जहाँ पर लैंड डिस्प्यूट चल रही है, यानी हर चीज एक्सटर्नल टू सेल्फ। एंड वो जो कंक्लूजन था उस प्रोग्राम का, वो जिस्ट ये थी कि द टफ रियलिटी इज नॉट आउट देयर, द टफ रियलिटी इज विद इन यू। यू नो, तो एक तो ये वाला पहलू है। तो ये जो फेसिंग टफ रियलिटीज का अगर आप देखें तो मुझे ये आपका दूसरा सवाल जो इसी में था, विच इज कि क्या इज दिस another storm that will just pass away like before other storms have come? तो अगर आप 100 साल की तारीख देख लें, आई मीन उसके अंदर अगर आपको स्पेनिश फ्लू का याद हो, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकंड वर्ल्ड वॉर, इकोनॉमिक मेल्टडाउन, तो बहुत कुछ हुआ, जाने गई हैं यार। आई मीन एक वाकई में 50 मिलियन गए, एक में 10 मिलियन गए, एक में 20 मिलियन गए। ये तो आई मीन ह्यूमन ट्रेजेडीज ऑफ दिस नेचर एंड मैग्नीट्यूड हैव हैपेंड थ्रू आउट हिस्ट्री। एंड तो कहने का मकसद ये है कि दिस टाइम राउंड इट हैज इम्पैक्टेड एवरीवन ग्लोबली इन अ कनेक्टेड वर्ल्ड। वेयर इज प्रीवियसली अगर आप सोचें ना, स्पेनिश फ्लू आया था, ब्लैक डेथ का जब हुआ था, उस पर डिजिटल टेक्नोलॉजी तो नहीं थी ना यार। आई मीन 700 साल पहले, 400 साल पहले तो वन डिडंट नो व्हाट्स हैपनिंग। अब तो कम से कम आप ये देखें कि स्टैट्स आपको सुबह शाम दिन रात कोविड 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 कोविड, आई मीन इंतहा हो गई है, यू नो। एंड द फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि वी हैव टू हैव फिल्टर्स, वी नीड टू हैव फिल्टर्स। यस, इट इज डेंजरस, इट इज लाइफ थ्रेटनिंग, लेकिन एक जो सबसे सुकून की बात होती है ना, जब भी कोई क्राइसिस आता है, ऑलवेज वर्क आउट द वर्स्ट केस सिनेरियो, ऑलवेज वर्क आउट। एंटरप्रेन्योरशिप में ये सिखाते हैं कि प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट एंड एक्सपेक्ट द बेस्ट। ये दो चीजें बहुत जरूरी हैं। And if you have not worked out the worst case scenario, you're in for a shock. तो फैक्ट इज कि हम जिस अंदाज से चल रहे थे ना पिछले 20, 25, 50 सालों से, तो हम तो ये समझ रहे थे कि ये चलता रहेगा, गाड़ी चलती रहेगी, एक दौड़ है उसमें हम आगे पीछे होंगे लेकिन चलते रहेंगे। ऐसा झटका लगा है कि अब हम इस खौफ में आ गए कि यार अगर एयरलाइंस नहीं चल रही, टूरिज्म नहीं हो रहा, ऑयल प्राइसेस जीरो से नेगेटिव पे आ गई है, इकोनॉमीज का ठप्पा, यू नो, जीडीपी गिर गया है, डेट बढ़ गया है, वगैरह वगैरह, तो किस तरह चलेंगे अब? नाउ नोटिस a lot of people who are in stress today and are panicked are because they haven't worked out the worst case scenario. What is the worst that can happen to us? और मैं आपको एक मिसाल देता हूँ कि आजकल देखो हम लोग इंटरनेट पे कितना नाश कर रहे हैं। जैसे एयरलाइंस पे नाश करते थे, होटल, नो वन कुड हैव विजुअलाइज्ड कि ऑल स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज विल शट, होटल्स विल शट एंड एयरलाइंस विल बी ग्राउंडेड, एंड ये सारा जो हम सुन रहे हैं, नो वन कुड हैव इमेजिन्ड, बट इट हैज हैपेंड। अब खुदा ना खास्ता अगर इंटरनेट क्रैश कर गया तो मुझे बताएं, सारी कनेक्टिविटी का सत्यानाश। और इस पे बड़ा नाश है, राइट? अच्छा, नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट इफ, तो उसके लिए भी अगर आप तैयार हो जाते हैं तो आप ये देखें कि माइग्रेशन हैज ऑलवेज हैपेंड इन द लास्ट 100 years फ्रॉम रूरल टू अर्बन। जॉब की तलाश में लोग अर्बन सेंटर्स में आए, और अर्बन सेंटर्स आर सैचुरेटेड। आप कलकत्ते का हाल देख लें, दिल्ली का हाल देख लें, कराची का हाल देख लें, शंघाई का हाल देख लें, एबनॉर्मली सैचुरेटेड पॉपुलेशन। न्यूयॉर्क, मैनहट्टन को देख लें। तो गुजारिश ये है कि व्हेन द वर्स्ट हैपेंस, then maybe you will start seeing migration from urban centers into the rural areas. Ultimately, यार bicycle अगर है तो you are a king, हैं? और अगर खेती बाड़ी आती है, and if you are well networked with farmers, you're doing well. Because देखो, the threat is lifestyle. The threat is not life. और lifestyle जो है उसमें ego भी है, उसमें टैका भी है, ये सारी चीजें खतरे में जरूर आती हैं। लेकिन इंसान की जिंदगी तो आप जानते हैं, यू एंड आई एंड ऑल ऑफ अस ऑन दिस प्लैनेट केम विद अ कंफर्म्ड रिटर्न टिकट, बट वी somehow don't keep that in mind. We have got a confirmed return ticket. There is no option to cancel. When the flight is announced, you'll be grabbed and taken. तो उसकी तैयारी हम कर नहीं रहे, और ये हमें पता नहीं है कि वो सारी फ्लाइट कब अनाउंस होगी। तो अगर हमें इसकी तैयारी नहीं है और हमने वर्स्ट केस सिनेरियो को नहीं देखा हुआ अपने दिमाग में, तो फिर हम तो जरूर पैनिक में आएंगे, शॉक में आएंगे, क्योंकि हम नशे में थे।
That is the नहीं, I point agree. I'm trying I to absolutely agree. अच्छा, मैं साथ साथ क्वेश्चंस भी लेता रहूंगा. अमन make. is हाँ, asking a question and हाँ. अमन का क्वेश्चन है और शायद बहुत रिलेटेड क्वेश्चन अभी टॉक के पॉइंट से भी है. She is saying sometimes we see the reality but we try to just ignore it because we are not ready to face it, right? Which later does not turn out to be good, right? So your thoughts on this? Ignoring realities, बाद में पछताना. What do you think? देखिए, अमन का सवाल मेरे ख्याल से रियलिटी को अगर हम उठा लें एज अ वर्ड, तो मैं चाहूंगा अमन पहले तो मैं रियलिटी के बारे में थोड़ा सा 2 मिनट तबसरा करूं और फिर आप ड्यूरिंग दिस टाइम अपने क्वेश्चन को थोड़ा और स्पेसिफिक भी कर दीजिएगा आफ्टर यू हियर मी आउट. देखिए, देयर इज एन ऑब्जेक्टिव रियलिटी एंड देयर इज ए सब्जेक्टिव रियलिटी. तो ये हमें समझना है, बहुत जरूरी है. When we talk of objective reality, we are talking of scientific subjects, facts and data. जैसे कि there are 7+ billion people living on one planet called Earth, which is part of the solar system, and the whole thing goes on. So that is a very objective reality. Whereas when we approach reality from subjectivity, it means that Aman lives in her world, Danial in his, I in mine. Every human being is living in his or her own world. तो जब हमको ये एहसास हो जाता है तो लीडरशिप का आगाज होता है. Leadership doesn't deal with the objective reality. Managers deal with objective reality. Leaders deal with the subjective reality. They know how to empathize, they know how to sympathize, and they are equipped not only with their own perspective, but perspectives of their constituents, no matter how many there might be. So leadership and crisis and facing tough realities. अब ये जो tough reality है, मेरी एक होगी, दानियाल आपकी एक और होगी, अमन की एक होगी, और जो शख्स फुटपाथ पे बैठा है और अपनी दिहाड़ी का इंतजार कर रहा है, उसकी एक और होगी. And as a leader, we all can empathize. वो कहते हैं ना, sympathy और empathy का जो फर्क है वो ये है, you feel for those in pain, that's sympathy. Yes. You feel Yes, with others is empathy. तो अब सवाल अगर आप इसको देखें, sometimes we see the reality but we try to ignore it. ये वाला जो सवाल है, ये बिल्कुल ऐसे ही है, denial कहते हैं इसको, denial. कि डॉक्टर कहता है कि भाई आप देखें, अगर इस खुराक को खाते रहेंगे तो आपका हार्ट जो है ना, अभी हमने आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल और आपका हमने देखा है कि पल्स आपका सही नहीं चल रहा और बीपी का जो इशू है, तो आप अपनी खुराक का ख्याल रखें. नहीं नहीं नहीं, मैं ठीक हूँ, ऐसे कोई बात नहीं है. बट देन दैट इज डिनायल. एंड व्हेन इट हिट्स एंड देयर इज अ हार्ट अटैक, आप देखें प्री एंड पोस्ट बंदे में ट्रांसफॉर्मेशन आ जाती है. तो ये कोविड भी एक तरह का हार्ट अटैक है कि दुनिया को, बिकॉज आप देखो दुनिया जिस रफ्तार से आगे बढ़ रही थी, 30 से 50 साल में वी वुड बी डूम्सडे. क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग, जो कार्बन एमिशंस जो हमने किए हैं, जो पोल्यूशन किया है यार, समंदर में मछलियों के पेट से प्लास्टिक के थैले जब निकलना शुरू हो जाएं, तो देन यू स्टार्ट आस्किंग, हैवान कितना अच्छा है, इंसान ने क्या जुल्म किया है. हम खूबसूरत जगहों पे जाते हैं नेचर को एंजॉय करने और नेचर का सत्यानाश करके वापस आते हैं. So that is what human beings have done. They have pillaged and raped the earth, the very home that we need to leave for the next generations. So ecology has also come to the surface. आजकल जनाब बिजनेस स्कूल्स में भी बड़ी बातें हो रही हैं कि कोविड के बाद करिकुलम क्या होना चाहिए. And I was just reading an article. I'll actually share it with you after we've done this session. मैं WhatsApp कर दूंगा, आपके जो listeners हैं उनके साथ भी आप share कीजिएगा. So yes, I mean, which later doesn't turn out to be good. तो ये मैंने अपनी सोच ये कही है कि देखें, जो भी सिलसिला है उसको acknowledge करें, accept करें, और जितनी सच्चाई में आप अपने साथ रहेंगे और दूसरों के साथ, तो तकलीफ तो होगी, but I think it will work out better for the long run. It is definitely important to express your feelings. Right, absolutely. I hope that answers someone's question. We'll have more questions taken in. अच्छा, मैं थोड़ा सा मैं एक बड़ा important point आपसे पूछना चाहूँगा. इस time पे when we talk about current, एक तो timing बड़ी interesting इस पूरे scenario की बनी. Mid of the year आते हैं आप, fiscal
कंपनीज के प्लान्स क्लोजिंग हो रही होती है, नए टारगेट्स बन रहे होते हैं, नई वर्किंग हो रही होती है. There are youngsters, क्योंकि पाकिस्तान, of course, you talk about Pakistani population, तो 57% still falls in less than 30 की एज जो है. Yeah, तो yeah. एक tough reality right now for youngsters who are starting businesses, they were looking for job opportunity. ये कैसे motivated रहे? How to come out of it? What are the few tips you would give to the youngsters कि ये बड़ी tough situation और tough reality है, jobs की position, बिजनेस को स्टार्ट किया तो उसको कैसे लेके चलें. वो लोग जो अपना करियर आगे बनाना चाह रहे हैं या पढ़ाई का सेशन स्टार्ट करने लगे थे, वो बेचारे परेशान हो गए. तो व्हाट डू यू थिंक, व्हाट, हाउ टू कीप वन सेल्फ मोटिवेटेड फॉर दिस? Oh, let me shed some light on this. In terms of leadership, अगर हम देखें तो the roots of leadership have 4 stages. And ये मैं youth को सामने रख के बात कर रहा हूँ, and everyone else listening. The roots of leadership go very, there are 4 layers to it. The first layer, you see it. अब मतलब अगर आप समंदर को देखते हैं तो आपको waves नजर आती हैं, लहरें नजर आती हैं. तो that is the behavior. Leadership is a verb, it's a behavior. हम जैसा behave करते हैं वैसे ही outcomes पाते हैं. अब इन हालात में स्टूडेंट्स कुछ सीख रहे हैं तो उसको सीखने के बाद जब वो अमल में लाएंगे तो जो बिहेवियर लाएंगे मार्केट में, उसी से रिजल्ट्स उनको मिलने चाहिए. अब वो बिहेवियर्स जो है कहाँ से आते हैं? दैट्स लेवल 2 एंड दैट्स इमोशंस. हम जो फील कर रहे होते हैं वही हमारे सामने आता है. गुस्सा आता है तो वो हम सुना दिखा देते हैं, खुशी होती है. अगर हम कंफ्यूज होते हैं तो व्हाटएवर वी फील वी रिफ्लेक्ट इन आवर एक्शंस. हमारे इमोशंस हमारी सोच से आते हैं, और सोच जो है उसके अंदर हमारा पैराडाइम, हमारे एटीट्यूड्स, हमारे माइंडसेट्स, हमारे जो परसेप्शंस हैं, दे आर ऑल इन आवर माइंड, इन आवर थॉट्स. अच्छा, अब अगर हम वहां से जाएं लेवल 4 पे, तो हमने शुरू किया सबक फ्रॉम द सरफेस को ठीक करना है ना. जितने भी आप देखेंगे बिहेवियरल ट्रेनिंग की बात होती है ना, या लोगों के रवैये बेहतर होने चाहिए. तो कैसे होंगे? इमोशंस को पहले आप समझे. इमोशंस कहाँ से आ रहे हैं? सोच से आ रहे हैं. सोच कहाँ से आ रही है? बिलीफ्स. दैट्स द 4th स्टेज. अच्छा, आपसे मैं पूछता हूँ या किसी से मैं पूछता हूँ, यार व्हाट इज योर टोटल एक्सपीरियंस? यू नो व्हाट आई गेट एज एन आंसर? सर 5 years, 3 years, 15 years. मैं कहता हूँ यार, आई आस्क्ड फॉर टोटल एक्सपीरियंस, आई डिड नॉट आस्क फॉर योर वर्क एक्सपीरियंस. इसका मतलब ये है कि पीपल आर कॉन्शियसली इग्नोरिंग their life before their career. And आप जानते हैं कि 95% of what you and I are was actually shaped from birth up to the point we got into a career of some kind. और हम उसको घास नहीं डालते. And that formative period of our lives is what we need to really address, because that's the unconscious part of us. 95% of what we are is unconscious. आप गाड़ी चला रहे होते हैं, जब आपने सीखा था उसकी बात तो आपको याद है टेंशन कितनी थी, स्ट्रेस कितना था, या स्टीयरिंग भी पकड़ना है, गियर भी बदलना है, आगे भी देखना है, पीछे भी देखना है. आज तो आप गाड़ी भी चला रहे होते हैं, सीटियां बजा रहे होते हैं, शेरो शायरी हो रही होती है. योर सबकॉन्शियस इज ड्राइविंग यू एंड यू आर एबल टू कॉन्शियसली एंगेज इन अदर एक्टिविटीज. इसी तरह अब आप देखिए कि इवेंट जो भी होता है, आजकल कोविड हो रहा है ना. Now, a lot of people are viewing it as a threat, and a lot of people are viewing it as a challenge. So my request is कि जितने हमारे सुनने वाले हैं, जो threats हैं उनको opportunities पे आप ले आए, because in the threat lies the opportunity, in the problem lies the opportunity as well. अब सवाल ये है कि अगर मैं पढ़ लिख के सामने आया हूँ मैदान में, तो मैं क्या सीख के आया हूँ? कारामद बनना, प्रॉब्लम सॉल्विंग करना. और आप जानते हैं जितने प्रॉब्लम्स होते हैं उतना डिमांड होती है प्रॉब्लम सॉल्वर्स की. जितनी गंद होगी उतनी मेथड की डिमांड होगी. तो अब अगर स्टूडेंट कारामद है, प्रॉब्लम्स को हल करना जानता है और साथ ही साथ एक दूसरों के काम आ सकता है, तो आजकल तो भरमार है अपॉर्चुनिटीज की. व्हाई शुड अ स्टूडेंट बी वरीड अबाउट यार मेरा फ्यूचर है, जॉब मिलेगी नहीं मिलेगी? व्हाई शुड वी थिंक इन दोस टर्म्स? We need to think in terms of what can we do for a group of people or a community or a market. किस चीज की जरूरत है? इनोवेशन है ये,
और आपने देखा होगा कि पिछले अमेज़न क्या था यार, आई मीन 20 साल पहले देयर वाज नो अमेज़न, आज 6 लाख लोग काम कर रहे हैं। अलीबाबा को देखें आप, इसी तरह से आप ये देखें उबर आया, करीम आया। ठीक है, आजकल के हालात में थोड़ा डाउन हुआ है, बट एट द सेम टाइम अप्स एंड डाउन तो हर जगह आते हैं। तो क्वेश्चन हियर इज कि पाकिस्तान में जितने आजकल प्रॉब्लम्स खुल के सामने आ गए हैं यार, इट्स अ शॉपिंग लिस्ट, इट्स अ सुपरमार्केट ऑफ अपॉर्चुनिटी. In a supermarket of opportunity, God doesn't want you to solve all the problems. You decide which problem do you want to attack, and just focus on that and work on it. Because problems से needs निकलती हैं, और needs को आप समझ के design thinking apply करें और पै जाएं. अब आपने भी तो आखिर जब सोलर की बात सोची थी तो आपने देखा था कि एनर्जी का बड़ा मसला था. There was a lot of issue, cost के लिहाज से भी और unreliability के लिहाज से, industrial as well as domestic. तो आपने क्या किया? आप घर हाथ पे हाथ तो रख के नहीं बैठ गए ना. You came up with a solution, and as a result, माशाल्लाह, you are where you are. तो ये मैं समझता हूँ कि प्रॉब्लम्स की कभी कमी नहीं होगी. Hell is the only place where there are no solutions. No solutions. We're not Wonderful living in thoughts. hell, and अच्छा, we're not मैंने living in hell. आज एक सोचा था आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा. ये मेरा पर्सनल क्वेश्चन है. मुझसे बहुत सारे लोग पूछते हैं एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में. सो मे बी आई हैव लर्नड इट द हार्ड वे. मतलब मैंने बिजनेस किया, टैक्सेशन, चीजें, ईच एंड एवरीथिंग. सो आई हैव लर्नड द हार्ड वे ऑफ डूइंग बिजनेस इन पाकिस्तान. टफ रियलिटी सिचुएशंस की बात करते हैं. मेरा एक क्वेश्चन आपसे था जो मैंने सोचा आज मैं करूंगा. ये एंटरप्रेन्योरशिप की जब बात होती है, क्या कामरान भाई ये एक कोई खास माइंडसेट है? मेरे पास भी यंगस्टर्स आते हैं, वो पूछते हैं जी हम एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं. It's the most popular word nowadays. If there's one word you pick up, it will be this. Startups हैं, What are the accelerators हैं, incubators हैं, और ये बिल्कुल एक interesting एक domain है. I think when I look at you, I always say that Kamba or Kamran bhai has a machine fit in the mind and he reads people. What are the 3 secret ingredients you look in somebody like यार ये entrepreneurship material है, ये business करेगा, yeah, he can do business. So what are those 3 secret ingredients? What are those 3 secret ingredients? एक तो पागल होना चाहिए उसको थोड़ा बहुत. पागल से मुराद मेरी ये है कि defy status quo, यानी कि उसको जॉब सिक्योरिटी की तलब ना हो. कि वो होता है ना कि लोग, माँ की कूक जो थी, when we were in the mother's womb, that was our comfort zone, right? सबसे पहला कंफर्ट जोन हमारा माँ की कूक थी. 9 महीने वहां अय्याशी की. उसके बाद हम जब बाहर आए तो रोते हुए आए. और क्यों रो रहे थे? कि अब काम करना है. Most of us end up looking for another cook, and when we find it, we kill our entrepreneurship. We kill that. तो पहली साइन ये है कि someone who is not looking for comfort zones. तो risk takers हैं. They are the ones who like to discover, adventurous, and are always on the lookout for opportunities because they are so excited about ideas. So दूसरा, they are very creative. So risk takers, they are very creative. And the third is they are great at working with people. Very, very good at working with people and dealing with conflicts as well. तो यहाँ ये आप 3 चीजें मिला लें कि आप रिस्क टेकर हैं, अपॉर्चुनिटीज तलाश कर रहे हैं. रिस्क का मतलब ये कि आप दिलो जान से उस ख्याल के पीछे पड़ जाते हैं और आप फिर इंस्पायर करते हैं लोगों को कि आपके साथ आए, और साथ ही साथ आपके अंदर क्रिएटिविटी बड़ी होती है, एंड यू बिलीव इन योरसेल्फ. तो ये तो मैंने देखा है कि एंटरप्रेन्योर के सीक्रेट सॉस ये है. Absolutely agree with that as well. अच्छा, मेरा एक आपसे जो क्वेश्चन था, और which I was looking when I will be asking you, 3 को आपने मुझे क्वालिटीज तो बता दी हैं of being successful entrepreneurs or looking at this working scenarios. ये numbers की गेम जो होती है, right? Lot of people come to me and they say कि business जो है वो emotions, ये can do attitude, ये सारी चीजें एक चीज होती है, लेकिन ये जो numbers होते हैं ना, मतलब आज आपने टीवी पे देखा होगा जी, पता लगा वो बिजनेस में ये क्राइसिस हुआ, तो शुगर में ये हुआ. ये नंबर्स की गेम एक ऑल टुगेदर डिफरेंट ही गेम है. व्हाट आर योर कमेंट्स? क्या नंबर्स इंपॉर्टेंट होते हैं? आर दीस मैथ्स पीपल? यार तुम मेरा मुंह खोल रहे हो. मैं जरूर एक बात कहना चाहूंगा, बिकॉज ये नंबर्स गेम जो है ना, लेट मी गिव यू एन एग्जांपल. आप ये बताएं कि
जब आप किसी शादी के फंक्शन पे प्री कोविड गए शादी के फंक्शन पे और बुफे लगा हुआ था, खाना अनाउंस हो गया था, तो आप जब जाते हैं और प्लेट उठाते हैं, लाइन में खड़े होते हैं, ठीक है, और तो क्या सोच रहे होते हैं जब आपके सामने 10-12 डिशेस लगी होती हैं, तो व्हाट आर द थॉट्स दैट आर गोइंग थ्रू योर माइंड कि मैं क्या खाऊंगा, कितना लूंगा, अच्छा ये देखने में तो अच्छा लग रहा है, लेट्स सी हाउ इट इज, थोड़ा एक्सपेरिमेंट करते हैं, फिर आप वो प्लेट लेके टेबल ढूंढ के अपने बैठ जाते हैं, अब आप बिस्मिल्लाह करते हैं, खा रहे होते हैं, एनी अदर थॉट्स दैट गो थ्रू योर माइंड ड्यूरिंग दैट प्रोसेस? Not really, but yeah, maybe thinking what others are thinking, क्या होगा, वो बहुत reality नहीं है. Otherwise, you're focusing upon it You're at what focusing where on you are. taste and maybe a bit of nutrition, या मैं ये ज्यादा ना खा जाऊं और इस तरह की चीजें, और यार ये इतना मजे का नहीं है जितना मैं सोच रहा था, या ये जबरदस्त है, इसको और लेके आ जाओ, इस किस्म की थॉट्स होती हैं, ठीक है. I have never heard of anyone who is eating while thinking of how many kgs he's going to shit. आप मुझे ये बताएं, कभी ऐसा हुआ है कि आप किसी महफिल में खाना खाने जाएं और आप ये सोच रहे हो या कितने केजी शिट करना है? यू नेवर थिंक अलोंग दोज लाइन्स. ओके, अब मैं ये इसलिए कह रहा हूं, अरे अच्छा यू स्विच्ड, तो मैं ये इसलिए कह रहा हूं क्योंकि what normally we do is that, देखिए, the latter word, which is very impolite but it's very true to us every morning, अगर हम ये ना कर रहे हो तो we are not healthy. तो कहने का मतलब ये है कि वो तो एक बाय प्रोडक्ट है, but it is never the foremost consideration. We eat to enjoy, some of it is nutrition and the rest goes out of us, and that is a sign of health. Now imagine if we are not, if you're constantly focusing on the second part. आप मुझे बताएं कैसी जिंदगी है यार, हम कहेंगे तुम्हारा दिमाग फिर गया है, खाना खाओ, एंजॉय करो, और जब फारिग हो गए, इट्स नॉट समथिंग यू टॉक अबाउट. बिजनेस में भी एग्जैक्टली यही है. जब लोग नंबर्स की बात करते हैं ना, वो यही कर रहे होते हैं कि वो चीज उठा के सर पे ले आते हैं, और जिस काम के लिए बिजनेस शुरू की थी उसका जिक्र ही नहीं होता. मसलन मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूं कि यू आर इन बिजनेस टू प्रोवाइड सर्विसेज and products of value to the community, to your market, and you want to earn their goodwill, and you want to ensure that they keep getting that value and peace of mind through your association with them. That is the business, and your responsiveness to their needs and to their problems has to be swift, and you want to be efficient about it, and you don't want to annoy and throw your customers in a quandary. अब ये तो बिजनेस का फोकस है. इफ यू विल बी डीलिंग विद दैट, क्या कैश फ्लोज आर ऑटोमेटिक, जस्ट लाइक शिट इज ऑटोमेटिक. ओके, और अगर आप सिर्फ उसका सोचेंगे तो आप यकीन जाने, यू विल नेवर इंस्पायर पीपल इन योर टीम, यू विल नेवर मोटिवेट देम, यू विल नेवर अलाइन देम अराउंड अ विजन. विजन इज नेवर अबाउट नंबर्स, विजन इज ऑल अबाउट द हार्ट. और मैं यहाँ पर एक आपको मिसाल दे देता हूँ कि आप किसी से पूछ के देख लें कि यार, देयर आर टू सिंपल क्वेश्चंस. अगर आप ये सवाल पूछें और जवाब मत दीजिएगा, व्हाट डू यू अर्न एंड वेयर डू यू लिव, तो अगर लोगों के दिमाग में जवाब न्यूमेरिकल है और पहले सवाल का, और दूसरे सवाल का जवाब लोकेशनल है, तो यार वो टाइम वेस्ट कर रहा है. इट्स अ टाइम वेस्ट. मैं इतने कमा रहा हूं और इधर रह रहा हूं. दैट इज नॉनसेंस यार. यू आर अर्निंग गुडविल and you are living in the hearts of people. If that is not happening, what are you doing? अब ये देखो ना. Absolutely agree. What is a brand? Brand है क्या? रचा हुआ है आपके इस निजाम में ना. A lot of people are brand junkies because उस brand में एक kick है और एक belief है, एक trust है. तो आप as individuals एक brand है, as a product or service भी एक brand होता है, और brand बनाने में integrity का बड़ा हाथ है. When you talk about this brand and numbers, coming up, there's a very interesting question. सीधा throw करता हूँ. Abdullah Hassan is asking you this question: how does Kamba manages to smile all the time? Because I'm a happy man, and happiness आता है शुक्र से, और शुक्र आता है उसकी अजमत. मैं कहता हूँ कि हर
लम्हे का शुक्र करना बहुत जरूरी है. एंड जज़ाकल्लाह, आई एम अ हैप्पी मैन एंड आई वांट ऑल ऑफ माय फ्रेंड्स टू बी हैप्पी. और मैं एक बात बता दूं कि खुशी जो है वो एक पहलू होता है. इमोशंस आर लाइक food, you know. You'll have bitter, you'll have sweet, you'll have sour, you'll have savory. खाने में आप देखेंगे ये सारी चीजें हैं. इसी तरह से इमोशंस होते हैं जिसमें पेन भी है, जॉय भी है, कंफ्यूजन भी है, स्ट्रेस भी है, वरीज भी है, जॉय भी, you know, हैप्पीनेस है, पीस ऑफ माइंड है, ब्लिस है. तो if you see this, there are times when it's not that at all. लेकिन ये जरूर है कि bounce back ये चीज. There are times as well when you smile, of course, but everyone goes through a tough situations in life. ठीक है? Oh yes. No pain, no gain. No pain, no gain. No pain, no gain as well. But there are people you associate. Kamran bhai, और ये बड़ी reality है. You are one of those. I'll associate. Always has a smiling face. तो ये कोशिश क्या है? मतलब even in the tough situation, you even come up with a smile. ये एक जिसे को कहते हैं कि वो सुपर सबकॉन्शियस का हिस्सा कब बन जाती है कि आप ऑटोमेटिकली मुस्कुराना ही आपका हो जाए. ये कौन से लीडरशिप की कौन सी निशानी है? हाय देखिए, मैं आपको मिसाल यहाँ देता हूँ. It has a lot to do with psychology, in the sense that there is an inside out phenomena and there's an outside in phenomena. तो अगर आप योगा से वाकिफ हो, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस से वाकिफ हो, तो आपने देखा होगा when you are very stressed and worried, so your breathing is fast and shallow. Yeah, agree. Okay, that's a response, an internal response which tells you कि there is stress. तो आप उसको किस तरह मैनेज कर सकते हैं कि भाई what is the opposite of shallow and fast? Slow and deep. अच्छा, तो अब आप कॉन्शियसली, वो तो सबकॉन्शियस ने आपको स्ट्रेस में डाला, अब आप कॉन्शियसली क्या करते हैं? यू ब्रीद इन, ब्रीद आउट. तो आप क्या कर रहे हैं कि फ्रॉम आउटसाइड यू आर कामिंग योर इनसाइड. और इसके पीछे वजह है. अब आप अगर देखें तो इफ आई डू दिस, I can't feel happy. If I do that, I can't feel sad. I can't, even if I try. So your facial muscles will create the emotions, or your emotions will create your facial muscles. Now, leadership, remember one thing about leadership. Leaders can never depress their audiences. Leaders, हालात जैसे भी हों, leaders will always inspire. और कहते हैं ना, तुम दिए बादे मुखालिफ से ना घबरा ए औकाब, ये तो चलती हैं तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए. इसी तरह से आप ये देखें कि वो नदीम चौहान मरहूम हमारे जो ट्रेनर थे, एग्जैक्टली अभी मेरे ज़हन में नदीम भाई आए थे. बिल्कुल, मैं अबाउट द क्वेश्चन करने लगा था. वो अंदर कहते थे कि अंदर का वो होता है, अंदर का बंदा होता है. एक वर्ड यूज करते थे. लास्ट वीक मैंने उनकी जिंदगी में आखिरी हफ्ता बिल्कुल उनसे मुलाकात भी की कुछ दिनों पहले, तो मेरे अंदर भी एग्जैक्टली वही पॉइंट आया था नदीम भाई के बारे में. यहाँ पर एक सवाल आ रहा है, देख लेंगे क्या है कमेंट है. ये सवाल में मेरे पास बहुत सारे आ रहे हैं, मैं वो ले रहा हूँ. और वो सवाल मैं कंटिन्यू करता रहूंगा. वो ये कह रहे हैं कि सिर्फ एक कामरान का कमेंट था कि मैं आपका हमनाम हूँ, मेरे और आप में एक चीज मुश्तरक है और वो है मुस्कुराहट. जबरदस्त, थैंक यू. तो ये ही वाज जस्ट सेइंग. अच्छा, एक क्वेश्चन मैं ताहिर नईम का लेना चाहूंगा कामरान भाई. ताहिर नईम इज आस्किंग, आपकी खैर वीडियो ऑफ हुई है, बट एनीवेज मैं वीडियो ऑफ की हुई है जान के मैं एक हरकत कर रहा हूं जो मैं चाहता हूं कि दूसरे ना देखें. एब्सोल्युटली फाइन. अच्छा, ताहिर नईम का सवाल है, हाउ कैन समवन चेंज हिज बैड हैबिट्स? And these are realities of life that we cannot change. Old childhood learnings, past bad decisions, past bad experiences. How young leaders can develop good habits? ये habits क्या होती हैं कामरान भाई? इनको कैसे बदला जा सकता है या नहीं बदला जा सकता, और क्या habits किसी के इर्द गिर्द रहकर बेहतर हो पाती हैं? ताहिर का ये क्वेश्चन है. हैबिट्स के वाले से थोड़ा बताएं, ये अच्छी हैबिट्स कैसे डेवलप की जाए? ब्यूटीफुल. ताहिर नईम, how do you pronounce his third name? That's an interesting one. Contour. I think contour is maybe तखल्लुस उन्होंने रखा है अपना, या वर्किंग है. ताहिर का सवाल बहुत अच्छा है. हैबिट्स जो हैं, देखें, excellence is not an act, it's a habit. अरस्तु ने ये कहा था. एंड सही मानों में अगर देखा जाए तो हमारी जो मैंने आपसे बताया ना, जो 4 मैंने लेवल्स बताए थे, बिहेवियर्स, इमोशंस, थॉट्स एंड बिलीफ्स,
ये जो हमारे Yeah. फॉर्मेटिव ईयर्स होते हैं, शुरू के 7 से 10 साल 12 साल, इसमें हैबिट्स बन जाती हैं, और सेल्फ अवेयरनेस इज डिस्कवरिंग व्हाट बिलीफ्स वी हैव एक्वायर्ड इन द प्रोसेस। तो बैड हैबिट्स में आप जानते हैं कि डांट देना, और बिलीफ्स में अगर आप देखें तो कुत्ते की दुम टेढ़ी की टेढ़ी रहती है, तो मैं ट्रेन क्यों करूं किसी को, अरे यार सब हाथ में नाले वाले दोस्त नहीं होते, ये एक बिलीफ है। Now these become Yeah. habits and we behave accordingly. तो Yeah. यहाँ पर Agree. good news is कि you can always change the script by first acknowledging what those bad habits are. अब मेरे कुछ बैड हैबिट्स हैं, मैं भी बुरी आदतों का शिकार हूँ। कुछ ऐसी आदतें हैं जिनको मैं कहता हूँ रहने दो यार, इट्स नॉट अफेक्टिंग मी, और कुछ ऐसी हैं जिनको मैं देख रहा हूँ कि दे आर अफेक्टिंग माय रिलेशनशिप्स, दे आर अफेक्टिंग माय विजन, माय गोल्स, तो मैं उनको चेंज कर लेता हूँ। तो Agree. अल्लाह ताला ने हमें आगाही का जो मौका दिया है, सेल्फ अवेयरनेस, इट इज सिंपली ट्राइंग टू अंडरस्टैंड what are the beliefs I have acquired over the years in the past which cause me to act through my unconscious self, जो कि होता है ना, फिलबदी मैंने किसी को डांट दिया, फिलबदी मैंने किसी की बजा दी, तो ये वाले जो हैबिट्स हैं, और गलत खाना, गलत टाइम पे सोना, और यू नो इररिस्पॉन्सिबल कॉन्डक्ट, केयरलेसनेस वगैरह जो हमारे हैबिट्स में आ जाती हैं, वंस वी बिकम कॉन्शियस, तो याद रखिए वी नीड टू बिकम रिस्पॉन्सिबल, और रिस्पॉन्सिबिलिटी अवेयरनेस से आती है, और जब रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है तो इफेक्टिवनेस आती है। तो यहां पर मैं गुजारिश करूंगा, द गुड न्यूज इज यू कैन ऑलवेज चेंज द स्क्रिप्ट बिकॉज यू आर द हीरो ऑफ योर मूवी। यू डोंट लाइक द स्क्रिप्ट दैट यू इनहेरिटेड, चेंज इट, और सोबत बदल दोगे तुम बेहतर इंसान बन जाओगे। और सोबत कैसे बदलते हैं? अपने पेरेंट्स को ना बदलो, अपने अजीजों को ना बदलो, लेकिन उस सोबत में ज्यादा वक्त गुजारो जहां से तुम बेहतरी की तरफ जा सकते हो। आइडेंटिफाई रोल मॉडल्स, read about them, and the more you read about your role models, और किताबों से बेहतर सोबत मेरी नजर में और कोई नहीं है, बिकॉज जो लोग नहीं है इस दुनिया में उससे भी आप सीख सकते हैं। आई मीन सुकरात है, लेकिन यू कैन रीड अबाउट हिम, उसकी सोच से आशना करें अपने आप को, उनके बिलीफ सिस्टम्स को अक्वायर करें, और फिर आप देखिए आपकी लाइफ में ऐसी चेंजेस आएंगी कि मैं बयान नहीं कर सकता। इट विल मेक यू, मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। आई इंस्टॉल्ड वन हैबिट इन माई सेल्फ विच वॉज देयर इज नो बैड न्यूज। There is no bad news. मैंने जब वो इंस्टॉल कर दिया, यकीन जानो बड़े तूफान आए, हर तूफान में मैंने एक अपॉर्चुनिटी ऑटोमेटिकली देखना शुरू कर दी, इट बिकेम अ हैबिट। तो मैं बड़ा डीप सा बन गया। ठीक है, तो नईम को बताइएगा कि गुड न्यूज इज कि आप सेल्फ अवेयरनेस में उन ट्रेडिशंस को, उन ट्रेंड्स को देखें, और ये देखें कि इफ दे आर नॉट अफेक्टिंग योर गोल्स, लेट देम बी, डोंट बी हार्श ऑन योरसेल्फ। वो चीजें आप अपने अंदर आइडेंटिफाई करके चेंज करें जो आप समझते हैं कि वो आपकी रिलेशनशिप्स खराब कर रही हैं, विद योर फैमिली, विद योर की रिलेशनशिप्स। दैट्स इट। वंडरफुल। ईगो को अच्छा, Arisha Khalid ka question hai, and if you can throw some light upon that as well. Which careers do you see flourishing in coming days? Kamran bhai, बड़ा अहम question है. People would definitely बहुत सारे लोग सवाल पूछते हैं. कौन से ऐसे careers होंगे जी? देखिए, ऑनलाइन रिटेलिंग एक बहुत जबरदस्त करियर है। इसमें मैं कहूँगा कि फ्रीलांसिंग अगर आप देखें, इन टर्म्स ऑफ वेब डिजाइन, इन टर्म्स ऑफ वीडियो एडिटिंग, इन टर्म्स ऑफ द टेक्नोलॉजिकल हाईवे, जितना भी डेटा से रिलेटेड एनालिटिक्स, मशीन लर्निंग, इस सिम्त में अगर आप जाएं तो उसमें बहुत जबरदस्त करियर्स हैं। टेलकोज में बड़े करियर्स हैं, और साथ ही साथ अगर आप देखें लॉजिस्टिक्स कंपनीज जो हैं, दे आर अमेजिंगली क्रिटिकल, क्योंकि अगर हम फिजिकल प्रेजेंस में ना भी हों, लेकिन इट इज लॉजिस्टिक्स दैट प्रोवाइड द फिजिकल गुड्स टू अस एट आवर डोर स्टेप। एंड लाइकवाइज अगर इसके आप मुबारक देखें, हेल्थ इज अ रिमार्केबल करियर, बिकॉज हेल्थ का आपने देख भी लिया है कि कितना बड़ा क्राइसिस आ गया। नो कंट्री इन द वर्ल्ड हैड hospitals large enough to cater to the number of patients that were coming. And in addition to that, I feel that writing, blogging is a remarkable career, and even YouTube channels are a great way to monetize. So ये चंद मेरे ज़हन में ideas आ रहे हैं. L&D is a tremendous career, and now anyone who has a gift of the gab can come on the screen and really make waves. अगर आप माइंड वैली की सिर्फ कहानी देख लें कि किस तरह एक नाकाम शख्स ने, जो कि चोटें खा खा कर वो एक कमरे में बैठ के उसने फिर काम शुरू किया है, कहां से कहां पहुंचा है। तो आई वुड सजेस्ट कि
These are some careers in which टेक्नोलॉजी को भी देख लें, एंड एग्रीकल्चर में बहुत फ्यूचर है, और वेस्ट मैनेजमेंट में बहुत फ्यूचर है, इन्वायरमेंटल और सोशल कॉन्टेक्स्ट में जो काम हो रहे हैं ना, ग्लोबल क्लाइमेट चेंज के हवाले से, जबरदस्त करियर्स हैं इनके अंदर। वंडरफुल। अच्छा, मैं साथ साथ एक्नॉलेजमेंट जरूर लूंगा उन लोगों की भी दैट हु वर कमिंग अराउंड। कामरान ने एक आपको एक्नॉलेजमेंट देना चाह रहे हैं, आपकी नेक तमन्नाएं आप तक पहुंचाना चाह रहे हैं। वो कह रहे हैं मैंने आपको 2018 में लाहौर में जिसने इकबाल में सुना था, वो 1 घंटा ऐसा था जैसे जिंदगी जीना इसी को कहते हैं। तो आपको मुस्कुराते जो देखा उससे सच्ची मुस्कुराहट कहता हूँ। लोग मुस्कुराने का आर्ट भी नहीं सीखते, कितनी अजीब बात है। आए। और मुझे याद है वो लाहौर वाला जो 2 साल पहले सेशन हुआ था, उसमें मैंने बात की थी जिक्र के ऊपर, एंड उसमें ज़ील, इंटेग्रिटी, कुडोस यानी नुमाया होना, एंड रिन्यूअल, एंड जिक्र इज माय फेवरेट थीम अराउंड व्हिच आई लव टू टॉक। मे बी नेक्स्ट टाइम दानियाल वी विल। एंड मैं कामरान का बहुत मशकूर हूँ कि इन्होंने मुझे रिफ्रेश कर दिया उस इवेंट। आई एंजॉयड इट एज वेल। उसमें नौजवान बच्चे भी थे और साथ में कुछ मैच्योर लोग भी थे, तो इट वाज अ वेरी गुड मिक्स ऑफ पीपल देयर, आई रिमेंबर। राइट। कामरान भाई, मेरा एक सवाल है, एंड लॉट ऑफ पीपल आस्क मी दिस क्वेश्चन एंड आई वांट टू आस्क यू एज वेल। रीडिंग हैबिट जो होती है, मतलब एट स्टिल एट दिस टाइम एज वेल, आप रीडिंग अपनी हैबिट्स को कंटिन्यू करें, एस्टैब्लिश करें, बेहतर करें, बड़ा मुश्किल होता जा रहा है आजकल के दौर में। हमारा फोकस टाइम बड़ा कम है, किताब जो मर्जी कर लें। अब लाहौर में आए, आप रीडिंग्स पे जाएं, आपको ऐसा ऐसा लोग तो मिलते हैं। जरा कोई टिप दें, फोकस रीडिंग कैसे की जाए और सस्टेनेबल उसको कैसे बनाया जाए? Yeah, my favorite question. I mean, this reading is so close to my heart. देखिए, there are 6 keys to self-improvement. 6 keys to self-improvement, and they are so commonsensical. I can't tell you, and those listening should make note of it. And if they are not, it's their loss. But they won't forget. देखिए, reading, writing, listening, speaking, observing, behaving. ये 6। आप हाउ गुड आर्टिस्ट्स को आप देखें, वैन गॉग का अगर आपने नाम सुना हो, और बड़े बड़े जो हमने, रेम्ब्रांट का जो नाम है, आई मीन दे वर ऑब्जर्वर्स ऑफ अ काइंड कि वो जो देखते थे वो उसको इतनी खूबसूरती से नक्श करके फिर इसको रिप्रोड्यूस करते थे। ठीक है, सो ऑब्जर्वेशन एंड बिहेवियर। अब आप दिन देखा होगा, बिहेवियर की हम लीडरशिप की बात कर रहे हैं ना, मूवमेंट, ग्रेस भी है और पेंडूपन भी है। आपने एक शख्स की चाल को देखा होगा, उसमें नफासत है, और दूसरे शख्स की चाल में बस वो इधर से उधर जा रहा है। तो आप रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग, स्पीकिंग, ऑब्जर्विंग, बिहेविंग, ये 6 हो गए। आगाज कहाँ से हो रहा है? रीडिंग से। अच्छा, अब रीडिंग के हवाले से मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि अगर आप सिर्फ आधा घंटा दिन में, आधा घंटा, आई एम नॉट इवन सेइंग एनी लॉन्गर, फर्स्ट डोंट गो फॉर, मैंने अपने बेटे को कुछ अरसे पहले, व्हेन ही वाज 18 इयर्स ऑफ एज, मैंने उसको कहा, बेटा डू यू लव मी? अच्छा, मेरे पीछे हाथ ऐसे थे, और मैंने उससे कहा, डू यू लव मी? कहता है यस। वो तो उसका फिल बदी सबकॉन्शियस रिस्पॉन्स, बाप को लव नहीं करूंगा तो जूते पड़ेंगे। तो वो कहता है यस। तो मैंने कहा कि देन विल यू डू समथिंग व्हिच इज वेरी इजी एंड डू इट ओनली फॉर हाफ एन आवर अ डे, and that's all because you love me. पहले तो हाँ कहता है, फिर कहता है कि यार ये क्या है इसके अंदर, what is he trying to do? तो मैंने पीछे से एक किताब निकाल के उसके सामने रखी, उसको पढ़ने का कोई शौक नहीं था। This is when he was 18 years of age. War and Peace by Leo Tolstoy, इतनी मोटी किताब, right? उसकी आंखें बंद हो गई, उसके कान से धुआं निकलने लगा कि यार ये क्या मैं उसको दिखा रहा हूँ। तो मैंने कहा, बेटा why are you so stressed by this? He says, you want me to read something I don't want, and it's such a fat book, and look at the fine print, I can't read this. मैंने कहा, बेटा, I don't expect you to finish it. So he says, then what do you want me to do with it? I said, can you spend half an hour with the book every day, and no more? Just half an hour. Anytime you like, before you go to bed, in the morning. So he says, what if I only read one line in that half an hour? I said, that's fine. But make sure you don't go beyond half an hour. And whatever you read, make sure you understand. And if you don't even go to the next paragraph. तुम्हें किताब नहीं खत्म करनी. Oh, that's okay. You mean to say I don't have to finish the book? मैंने कहा absolutely. अच्छा, ये जब मैंने कहा तो वो, आप यकीन जाने, 1 महीने के अंदर हाल ये हो गया
he started talking, he started expressing, he started to share ideas with me. और अल्हम्दुलिल्लाह आज हाल ये है कि वो किताब पढ़े बगैर सोता नहीं है. And what is a book? It furnishes your mind. It just furnishes your mind. और thoughts की कोई boundaries नहीं होती. टोपी तो एक साइज की होगी, फिजिकल जो है, लेकिन सोच की क्या बाउंड्रीज हैं. अल्लामा इकबाल को किन नौजवानों से प्यार था जो सितारों पे बांधते हैं कमान. तो unless you read good authors, not any, and you read with the desire not only to understand but feel and not be in a hurry to finish. आधा घंटा आप अगर लगाएंगे, आप एक पैराग्राफ से जो जूस निकालेंगे ना, आप यकीन जाने आपको जो मजा आने लगेगा वो एक आदत खुद से बनना शुरू होगी. यू जस्ट ट्राई डूइंग दिस एंड देन एक वक्त आएगा कि आपसे रहा नहीं जाएगा. बिकॉज विदाउट वर्ड्स वी विल नेवर बी गाइडेड. वर्ड्स आर द वेपन्स ऑफ लीडर्स. ठीक, 3 क्वेश्चंस आ गए हैं. एक मुझे जैन बलोच हैज जॉइंड. आपकी भी इज प्रोडी योर स्टूडेंट एज वेल. जैन बलोच जो है शायद मैंने इनसे हाल में मुलाकात की है. यस. ऑलराइट जी. he takes you as a godfather as well, I'll say. अच्छा कमरान भाई, एक क्वेश्चन है उनका, और फिर उसके बाद मैं एक किश्वर का हमारे पास ग्लासगो से मैसेज आया हुआ है. शी इज लिसनिंग यू फ्रॉम स्कॉटलैंड. और मेरा ख्याल है कि स्कॉटलैंड से आपकी भी कुछ यादें हैं. बिल्कुल, मैंने वहां से एमबीए किया था, यूनिवर्सिटी ऑफ स्ट्रैथक्लाइड. one more thing which I am proud of, that both people in this window are graduates of University of Strathclyde, so that's something which is even brilliant. So we are the alumnus. ये ग्लासगो की ना, वो जैसे कहते हैं ना, ग्लासवेजन मीटिंग हो रही है. दिस इज व्हाट इज टेकिंग प्लेस. अच्छा, Zain कहती है जी, wanted to say hello, going well, very light and informal and I'm loving it. आप अपने सेशन में PPRR की बात करते हैं, वो कॉन्सेप्ट बताएं जी. ये Zain साहब को कह रहे हैं PPRR क्या होता है जी. हाँ, PPRR नहीं, Zain कहना ये चाह रहे हैं पप्पू रे रे. इसको मैं कहता हूँ पप्पू रे रे. और आप देखिएगा एक वक्त आएगा कि पूरे मुल्क में पप्पू रे रे के नारे लग रहे होंगे. नारे लगेंगे. अच्छा, तो ये जरा सीक्रेट बताएं भी सही जी. इट्स अ ब्रांड. देखिए, पप्पू रे रे के अंदर 4 अल्फाज हैं PPRR में. तो एजुकेशन का इससे बड़ा गहरा ताल्लुक है. और अगर एजुकेशन पप्पू रे रे का डाया नहीं बड़ा करती तो इसका मतलब ये है कि एजुकेशन बिल्कुल माठी है. It's a very important verifiable indicator. Now, what is PPRR? Practical, possible, relevant and realistic. ये 4 कोर अल्फाज हैं जो हमारे बिलीफ से सेट हैं. तो कुछ का पप्पू रे रे का दायरा छोटा होता है कि वो जो मुमकिन समझते हैं वो जरा इस दायरे के अंदर की बात है. इसके ऊपर सारी बातें इम्प्रैक्टिकल होती हैं. और कुछ का दायरा इतना बड़ा होता है पप्पू रे रे का, कुछ का दायरा इतना बड़ा होता है. अब सवाल ये है कि अगर आप एक यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन करके निकल रहे हैं और छोटे पप्पू रे रे को लेके गए थे और छोटे ही रहा, तो आपने जो भी सीखा है बेकार है. अब आप मुझे बताएं कि स्टीव जॉब्स का पप्पू रे रे क्या था, मार्क जुकरबर्ग का पप्पू रे रे क्या था. पप्पू रे रे बड़ा होगा तो इम्कान बड़े बनेंगे, पप्पू रे रे छोटा होगा तो आप वहीं ठिठर के रह जाएंगे. तो मैं ज़ैन बलोच का बहुत शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने मेरा फेवरेट टूल जो है वो बयान किया. एक्सपैंड योर डाया of practical, possible, relevant and realistic. In this world, nothing is impossible. And always entertain ideas of value and don't reject them. तो ये है. कामरान भाई, एक सवाल है, और मैं अभी जो तरीन थी हमारे पास मैसेज था ग्लासगो से, वो मैं करूंगा. ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट है. हम फास्ट लाइफ में इतने आ गए हैं, ठीक है, और ये मैं आपसे एसोसिएट करता हूँ. I spent 10 minutes with you and I would know somebody is listening to me and absorbing what I'm saying. आजकल हम रिस्पॉन्ड करने के लिए ज्यादा सुनते हैं किसी की बात, बट अब्सॉर्ब नहीं करते. इस स्टेटमेंट पे थोड़ा कमेंट करें. किसी की बात हो रही होगी तो इसलिए उस पर कमेंट कर सकें, उस पर बता सकें. ये हमारी अब्सॉर्बिंग पावर कम हो गई है. किसी को सुनने के बाद रिस्पॉन्ड करने की हमारे में ज्यादा हो गई. क्या वजह? बेसब्रापन एक तो है, इम्पेशंस डेफिनेटली.
और दूसरा एक और है कि अच्छा लीडर जो होता है वो उसी सूरत में अच्छा होता है जब किसी को कायल कर सके, और कायल करना हो तो आपको सुनने की सलाहियत पैदा करनी है. You can never influence anyone if you are not able to read them. Listening to others is reading them just like a book. When you listen to people, you know where they are coming from. Once you know where they are coming from, then you're able to make your remarks which are appealing to them. And that's how Agree. you influence. Agree. Because people think कि यार मैं अगर अपना सही पिच बना के जाता हूँ, पिचिंग पे बड़ा शौक होता है, तो वो ये समझते हैं कि अगर मैं पेशकश अच्छी कर दूं, पिच अच्छी बना दूं, तो आई विल बी सक्सीडिंग. तो वो इसलिए मेरे ख्याल से बेख्याली में दे आर वेटिंग देयर फॉर देयर टर्न टू पिच रादर देन ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि हो क्या रहा है. तो फर्स्ट सीक टू अंडरस्टैंड, स्टीवन कवी कहते थे, फर्स्ट सीक टू अंडरस्टैंड देन बी अंडरस्टूड. पहले समझो और फिर समझाओ. तो ये वाली तरतीब जो है चैंपियंस की तरतीब है, वरना आप दीवार से सर टकराते रहेंगे एंड नुकसान ही नुकसान है. और मैंने देखा ये है कि द बेस्ट फ्रेंड्स यू हैव इन लाइफ, इवन आई आस्क यू दानियाल, हर वो शख्स जो आपको सुनता है और बड़े सुकून से सुनता है और जज नहीं करता. कितना प्यारा लगता है वो आपको शख्स, यार मैं जाके जो भी अपनी कैफियत है वो सुनाता हूँ, एंड ही लिसन्स विद इंटेंट. So to be successful, become a great listener, not just a good listener, a great listener. It's I think that's what as a modern businessman, मैं क्योंकि बिजनेस में काम करता हूँ, मैंने भी अभी तक ये सीखा है कि ऑब्जर्व करना, लोगों को बात सुनने का जितना इम्पैक्ट होता है आजकल, इवन इन सेल्स मीटिंग्स. आई एम अ सेल्स गाय, आई सेल बिग प्रोजेक्ट्स. तो मैंने ये बात रियलाइज की है कि आजकल आप जाके जितना क्लाइंट को सुने, ना कि अपनी बात भी बताएं, तो दिस इज ऑल्सो विद अस. किश्वर ग्लासको से ज्वाइन कर रही हैं और वो आपसे सवाल कर रही हैं, हाउ कैन वी मैनेज टू रिड्यूस स्ट्रेस. वी आर इनटू लास्ट 5 minutes. आपसे मैंने कंक्लूजन भी करवाना है. सो हाउ कैन वी मैनेज टू रिड्यूस स्ट्रेस एंड स्टे हेल्दी. ये जरा फोकस 2 क्वेश्चंस हैं, रिड्यूस स्ट्रेस एंड हेल्दी. एंड आई थिंक ये जो है ना, फेसिंग टफ रियलिटीज में जरूरी है कि हम स्ट्रेस को किस तरह फेस करें और हेल्दी कैसे रहें. तो इसमें जो 3 एलिमेंट्स आते हैं मैं बताना चाहूंगा. एक तो फिजिकल, दूसरा हमारा मेंटल, और तीसरा जो है हमारा जो है स्पिरिचुअल. ये 3 एस्पेक्ट्स हैं जिसमें हम अपने आप को सेहतमंद बना सकते हैं. और जब हमारी स्पिरिट जो है वो दबी हुई होती है तो स्ट्रेस तो वैसे ही आना शुरू हो जाता है, हमारी रूहानी कैफियत जो है. अच्छा, अब इसके लिए मैं आपको एक मिसाल दे दूं कि इफ देयर 2 कैन्स, या एक कैन ले लें कोक का या पेप्सी का. आप व्हाट डू यू प्रेफर, पेप्सी और कोक? 2. नहीं, पेप्सी या कोक? अच्छा, पेप्सी कोक. आई विल गो फॉर कोक. ठीक है. अब आपको मैंने फ्रिज से कोक का कैन निकाल के दिया और खोला नहीं, और आपने भी नहीं खोला, और मैं कहता हूं यार इसको दबाओ, राइट, आई क्रश इट. तो अब आप हाथ से दबा रहे हैं, वो डेंट हो रहा है लेकिन क्रश नहीं हो रहा. मैं उसको खाली करता हूं और फिर आपको वो कैन दे देता हूं. अब मैं कहता हूं एक्सर्ट द सेम फोर्स, क्रश इट. आप करते हैं और वो क्रश हो जाता है, बद शक्ल हो जाता है. अब सवाल ये है कि पहला कैन क्यों नहीं हुआ? उसके अंदर सब्सटेंस था, दूसरा खाली था तो वो बढ़ गया. तो हमारे सेहत का जो राज है वो इम्यून सिस्टम है. देखिए, पाकिस्तान में बहुत सी बीमारियां, इन्फेक्शंस फैली रहती हैं हर वक्त, बिफोर कोविड ऑल्सो. लेकिन क्योंकि हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होता है तो वी आर एबल टू नॉट इवन रिकॉग्नाइज कि क्या हुआ. So how to be healthy, we have to strengthen our immune system. अच्छा, फिजिकल में स्लीप इज वन. अगर हम पूरी नींद नहीं कर रहे तो हमारा इम्यून सिस्टम कमजोर हो रहा है. अगर हम न्यूट्रिशन में बैलेंस, रिस्ट्रेंट और डिसिप्लिन एक्सरसाइज नहीं कर रहे और ऊट पटांग खा रहे हैं और बेवक्त खा रहे हैं तो वो भी हमारे इम्यून सिस्टम को इफेक्ट करेगा. और अगर हम एक्सरसाइज नहीं कर रहे, मीनिंग अ सिंपल वॉक, half an hour in the morning, half an hour in the evening, फिजिकल एक्टिविटी करना बहुत जरूरी है. 3 चीजें हो गई, स्लीप, न्यूट्रिशन एंड एक्सरसाइज. ये तो आपके इम्यून सिस्टम को स्ट्रेंथन करते हैं. अब मेंटल पे अगर आप आए तो आप हैरान होंगे ये जान के, यू कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव, यू कैन बी एन ऑप्टिमिस्ट और अ पेसिमिस्ट. All pessimists, all those who have a negative attitude, and all those who say कि यार doom doom doom, हम तो गए. Do you know what you're doing? Psychosomatic illnesses होती हैं. For example, when you are negative and you are looking at the bleak side of life all the time, यार हम तो गए, अब तो पता नहीं क्या होगा, you are releasing cortisols.
chemicals which are harming your immune system. Yeah. When you're positive and you Hmm. want to live and you are looking for solutions in life and you're hopeful and you're optimistic, you're releasing endorphins and other chemicals that will reinforce your immune system. So, guzarish ye hai ki if you're positive, you sleep well, you have a balanced diet, you eat regularly, and you do your exercise. And remember, spirit ka kya hai? Ki you are a spiritual being having a human experience. You're not a human being having a spiritual experience. Control your mind. Don't let the mind control you. जब आप Yeah. अपने दिमाग को अपने काबू में करेंगे तो दिमाग वही करेगा जो आप चाहेंगे, because you are a spiritual being having a human experience. Human में mind भी है, body भी है, दोनों का मैंने आपको बता दिया. Spirit will always keep you positive. When without spirit, when you suppress it, you'll go negative. तो ये चंद ख्यालात. Kamran bhai, before I ask you a conclusion question, मेरा इसी से रिलेटेड एक बात है. आपको कोई बात कहता है, आप उस पर एकदम से रिएक्शन देने लगते हैं, ठीक है? मतलब कोई रिएक्शंस आजकल हमारी लाइफ का नॉर्मल हिस्सा हो चुके होते हैं. मेरे जहन में इंस्टेंट क्या चीज क्लिक करे कि मेरा अपना रिएक्शन कंट्रोल हो जाए. मतलब आजकल मैं जब हर बंदा कोई रिएक्शन देने लगता है तो एकदम से आपकी कोई ऐसी बात जो जहन में हमें याद है, यार ये नहीं, ये टिक मैंने करना है, ये रिएक्शंस को कैसे कंट्रोल करें? एंड आई थिंक 90% of the conflicts, they say 10% is all about conflicts, is about reactions and those tone of words. तो इस पे थोड़ा मुझे बताएं, रिएक्शंस कैसे रोक लें? मैं तो कहूंगा कि वो विलियम मास्टन ने 5 बड़े अहम नुकात बताए थे. पहला उसने कहा था सक्सेसफुल पीपल अंडरस्टैंड देमसेल्व्स एंड हाउ देयर बिहेवियर अफेक्ट्स अदर्स. दूसरा उन्होंने कहा कि सक्सेसफुल पीपल अंडरस्टैंड हाउ दे रिएक्ट टू अदर्स. बिकॉज देखिए, a lot of times situations happen to us and it's what happens and how we respond to it that determines whether we win or lose. Absolutely. और इसी तरह से वो और भी बातें कहता है. तो यहाँ पर मैं सिर्फ 2 नुकात कहूंगा, अगर उस पर ही अमल कर लें तो बहुत फायदे में है. when angry, और गुस्सा आता है, सबको आता है. जब गुस्से में हो कभी फैसला ना करो. Don't make decisions when you're angry. And when you're happy, never promise. ये 2 चीजें आप बिठा लें, आई थिंक आप बहुत बचे रहेंगे. बहुत सी और बातें इसमें आती हैं, लेकिन मैंने अक्सर देखा है कि लोग गुस्से में गलत फैसले कर गए और खुशी में ऐसे वादे कर गए जो निभा ना सके और फंस गए. तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट नॉट टू बी कैरिड अवे विथ योर इमोशंस, एंड वेदर जॉय और एंगर और sorrow, recognize them. Don't fight those emotions. Accept them. Because we're not perfect human beings. हम लोग गलतियों के पुतले हैं. Enjoy yourself. Experience all your emotions. Accept them. Don't fight them. And calm yourself and say कि नहीं, this will pass. और वो इसके closing कहावत है, what is in the way is the way. What is in the way is the way. Is the way. That's it. तो हो जाएगा, मामले हल हो जाएंगे. और याद रखें, कंफर्म रिटर्न टिकट तो है, उसकी तैयारी में रहें. जिंदगी में दिन ना गिने, एक दिन में जिंदगी जिए. Wonderful thoughts. The essence. These are wonderful thoughts. On behalf of Evolve as well, I'll especially thank you. Amazing discussion. मुझे ऐसे लगा कि heart to heart connection and whatever you speak is directly going to audience in my heart as well. I would like to especially thank you from your alumni or university mate as well. Thank you. Thank you very much, Kamran bhai. बहुत शुक्रिया. Allah Hafiz. Keep up the good work. Thank you very much. Thank you, Ji. All right, that was Kamran Rizvi. Stay connected with Evolve. Thank you very much, Kamran bhai, for joining in. For everybody who joined it across the Pakistan, thank you very much. Evolve sessions will continue. Evolve team is always there, coming up with ideas. Just for those guys who would like to be a part of the discussion as well, you can write down to us inboxes at Evolve inbox page. Kal humne export leftover ELO we did a discussion, so a lot of questions came in for that. So we are trying to connect. Evolve is all about connecting people with different connecting people. So drop us an inbox or write on at info@evolveglobal.com.pk.
On behalf of my team, I'd like to especially thank the Evolve team as well, Nazifa, Aman, and Haris, who have been putting their heart and soul into the session as well. So thank you very much. Stay connected. We'll be back with more sessions.